Morning students, I am S.K. Sinha, your grammar teacher. Today the first chapter is the sentence. Here we will discuss about this chapter in Hindi as well as English. Okay. Now let's start. Definition: the sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं. वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम वाक्य कहते हैं. जैसे हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, वी वॉच टेलीविज़न. हियर यहाँ यह एक पूर्ण अर्थ रखा है इस वाक्य में. राम इज रीडिंग अ बुक, राम किताब पढ़ रहा है. तो इस तरीके के वाक्य आपके पूर्ण अर्थ रखने वाले हैं, इसको हम वाक्य कहते हैं. आइए वाक्य के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखें. किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाता है. सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. Sentence can be classified into 4 types on the basis of their function. Assertive sentence. First, assertive sentence. A sentence that makes a statement or assertion. It states facts as she is very intelligent woman. He did not work hard. Next, interrogative sentence. A sentence that asks a direct question as hasn't he got a pen? Do they come here very often? Next, imperative sentence. A sentence that expresses an order, request, entreaty, advice, suggestion or wish as take these books home. Please open the window. Next, exclamatory sentence. A sentence that expresses sudden and strong feelings such as surprise, happiness, admiration, pity, sorrow, etc. As bravo, we won the match. What a beautiful day it is. Next, sentence can also be classified into 3 types on the basis of their structure. Simple sentence. Simple sentence contains only one principal or main clause. It has only one subject and one finite verb. Ankita is very beautiful, very charming girl. My dress has become dirty. Next, compound sentence. Compound sentence contains 2 or more principal or main clause joined together by a coordinating conjunction. Main clause are also known as an independent clause. We went to the market, but the shop were closed. We went to the market, but the shops were closed. Here, we went to the market is main clause, but is a coordinating conjunctions, and that the shops were closed main clause. Third, complex sentence. Complex sentence is made up of one principal or main clause and one or more dependent or subordinate clauses joined together by a subordinating conjunctions. I was punished because I was late. Here, I was punished a main clause because subordinating conjunctions, and I was late is a subordinating clause. Here, the first chapter is completed, and let's we listen it in Hindi also. जैसा कि हम पहले बताए हैं कि वाक्य जो है वह वाक्य को हम लोग 2 प्रकार से उसका वर्गीकरण करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वाक्य
फंक्शन के आधार पर, फंक्शन का हिंदी हुआ कार्य, वह कार्य के आधार पर, और स्ट्रक्चर यानी बनावट के आधार पर। हम कार्य के आधार पर वाक्य को बेसिकली 4 या 5 रूप में, अलग अलग किताबों में आप देखेंगे, किसी बुक में 5, किसी बुक में 4। हम लोग जिस बुक में पढ़ रहे हैं उसमें 4 ही भागों में उसका वर्गीकरण किया हुआ है। असर्टिव सेंटेंस, इस वाक्य में आप देखते हैं कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो ये वाक्य एक स्टेटमेंट बनाता है, इसमें किसी फैक्ट को बताता है। जैसे कि सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट वुमेन, वह एक बहुत ही मेधावी महिला है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करता। ही डिड नॉट वर्क हार्ड। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक, हम प्रश्न करते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें प्रश्न किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है। हैजंट ही गॉट अ पेन, डू दे कम हियर वेरी ऑफन, क्या वह यहाँ प्रायः आते हैं। डू दे कम हियर वेरी ऑफन, क्या वह यहाँ प्रायः आते हैं। थर्ड है इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, एंट्रीटी, एडवाइस, सजेशन और विश, ये सभी तरह के वाक्य उसमें इंक्लूड रहते हैं। उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी में हम किसी बुक में ऑप्टेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे, जिसमें विश, डिज़ायर, ब्लेस, कर्स एट्सेट्रा, ये सभी सेंटेंस आपको मिलेंगे। जब हम लोग नरेशन बनाएंगे तो इन सारे वाक्य को एक बार पुनः हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वह वाक्य जिसमें एक्सप्रेस का मतलब होता है टू टेल, बतलाना। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वह बताता है अचानक या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, सच एज सरप्राइज, जैसे हम बहुत खुश होते हैं, हैप्पीनेस, एडमायरेशंस, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, पीटी, दया, सौरो, दुख एट्सेट्रा, इन सभी वाक्यों में को बताया जाता है। ब्रेवो, वी वोन द मैच, ब्रेवो, खुशी के समय आदमी एकदम खुशी जाहिर करता है, ब्रेवो, वी ओन द मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। खासकर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इस तरह के वाक्यों का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सेंटेंस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्दर आप किसी और बुक में, फर्दर क्लासेस में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें मिक्स सेंटेंस पे मिलेगा, लेकिन अभी चूँकि हम 7th के लेवल से चल रहे हैं तो अभी आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में ही जानना है। सिंपल सेंटेंस contains only one principal और मेन क्लॉज, इसमें केवल एक मुख्य प्रधान वाक्य और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज प्रधान वाक्य को करते हैं। हैज़, सिंपल सेंटेंस contains only one प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही प्रधान वाक्य होते हैं। प्रिंसिपल, इट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट, जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। इट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। अंकिता इज़ अ वेरी चार्मिंग गर्ल, माई ड्रेस हैज़ बिकम डर्टी। इस वाक्य में अंकिता इज़ अ वेरी चार्मिंग गर्ल, यहाँ एक ही मुख्य है और यह किसी पर निर्भर नहीं होता, यह साधारण वाक्य कहे जाते हैं, जिसमें एक ही सब्जेक्ट, अंकिता एक सब्जेक्ट है एंड वन फाइनाइट वर्ब, आपको दूसरा जो है वह एक फाइनाइट वर्ब है, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, इज़। माई ड्रेस हैज़ बिकम डर्टी। अब यहाँ आप देखेंगे कि माई ड्रेस, जो माई ड्रेस है वह भी आपका सब्जेक्ट है और एक ही इसमें फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट आ जाएं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड का मतलब ही होता है, हिंदी में इसको यौगिक कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कॉन्टेंस 2 और मोर प्रिंसिपल और मोर क्लॉजेस।
कंपाउंड सेंटेंस कॉन्टेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस में शामिल होते हैं दो या दो से अधिक प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉजेज ज्वाइन टुगेदर, जो एक साथ ज्वाइन रहते हैं बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा दो या दो से अधिक क्लॉजेज आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मेन क्लॉजेज आर आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो अब एक ही चीज़ को, मेन क्लॉज को हम मेन क्लॉज कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कर सकते हैं। यह तीनों एक ही चीज़ है। तो दो मेन क्लॉज या दो प्रिंसिपल क्लॉज या दो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब जुड़ा रहेगा तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। वी वेंट टू द मार्केट बट द शॉप्स वर क्लोज्ड। यहाँ वी वेंट टू द मार्केट मेन क्लॉज हुआ, द शॉप्स वर क्लोज्ड ये भी मेन क्लॉज हुआ, और बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिससे ये जुड़े हुए हैं। थर्ड वन, कंपाउंड। कंपाउंड के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल और मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट clauses joined together by a subordinating conjunctions. Complex sentence is made up of one principal or main clause and one or more dependent or subordinate clauses joined together. Here, I was punished because I was late. Main clause, I was punished because subordinating conjunctions and I was late subordinating clause. तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है। तो इस तरह के वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। थैंक यू। आज केवल मैंने आपको चैप्टर के बारे में बताया, कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गई होगी। आप एक बार पुनः घर पर इसे अपने से पढ़ेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे और घर में ही रहेंगे। इस विषम परिस्थिति में भी विद्यालय परिवार आपके और आपके परिवार के लिए मंगल कामना करता है। घर में सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।